السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں، وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ اسلام آباد میونسپل دفتر میں اے سی بی کا دعویٰ، عمارت کی تعمیری کاموں کے لیے رقومات کی وصولی کرنے کے الزامات سے کی تنقید۔ خواتین کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں اندرما ساڑیوں کی تقسیم پر مبنی پروگرام میں سی ایم ریونت ریڈی کی شرکت و ریاست میں کروڑوں خواتین کو ساڑیوں کی تقسیم کرنے کا کیا اظہار۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے سعودی عرب میں پیش آئے المناک سڑک حادثے میں 45 حیدرآبادی معتمرین کے شہید ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ IMAIAPNNF تنظیمی عوامی صحت کے لیے کیے جانے والے خدمات قابل ستائش۔ اسلام آباد میں نومولود بچے کے تحفظ کے لیے بیداری کانفرنس سے اربن MLA دھن پال کا خطاب۔ ملک کی آزادی میں گاندھی خاندان کا اہم کردار، اچمپیٹ میں اندرا گاندھی کے مجسمے پر TPCC چیف MLC مہیش کمار گوڈ نے پیش کی گلِ عقیدت۔ اسلام آباد سینٹرل لائبریری میں نیشنل لائبریری تقاریب کے موقع پر مہندی مقابلہ جات کا کیا گیا انعقاد۔ ضلع ایسوسی ایشن لائبریری چیئرمین انتا ریڈی راجا ریڈی نے شرکت کرتے مقابلہ جات کا لیا جائزہ۔ حکومت کی جانب سے باوقار طریقے سے شروع کیے جانے والے اندرما ساڑیوں کی تقسیم کو شفاف طریقے سے انعقاد کرے، ضلع کلکٹر TV نے کرشنا ریڈی نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ اقلیتی کمیشن چیئرمین کا دورہ ورنگل کلکٹریٹ، اقلیتی طبقے کے تمام ذمہ داران نے استفادہ کیا۔ ورنگل کلکٹریٹ میں ریاستی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین جناب طارق انصاری کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ضلع کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شماردہ اور DCP انکت کمار نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ضلع میں اقلیتوں کی بہبود کے لیے عمل میں لائی جا رہی مرکزی و ریاستی فلاحی اسکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تعلیم، روزگار، اسکالرشپ فنڈز کی اجرائی اور اسکیموں کے شفاف نفاذ سے متعلق مختلف امور پر مفصل تبادلہ خیال ہوا۔ کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شماردہ نے ضلع میں اقلیتی طلباء کے لیے نافذ پوسٹ میٹرک اسکالرشپس، PM اوورسیز اسکیم، اقلیتی اقامتی اداروں اور ریاست میں اقلیتوں کی ترقی اور ان کے حقوق کے تحفظ کو مزید تقویت ملی۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن کی جانب سے اقلیتوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون اور رہنمائی فراہم کی جاتی رہے گی۔ اس اجلاس میں اقلیتی کمیشن کے رکن درشن سنگھ، ضلع ریونیو آفیسر، ضلع اقلیتی بہبود آفیسر رمیش سمت، دیگر عہدیدار موجود تھے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے سعودی عرب میں پیش آئے المناک سڑک حادثے میں 45 حیدرآبادی معتمرین کے شہید ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے کہا کہ یہ سانحہ صرف متاثرہ خاندان کا نہیں بلکہ پورے تلنگانہ اور ملک کا اجتماعی درد ہے جس نے ہر دل کو مغموم کر دیا ہے۔ کویتا نے آج شہداء کے مکانات پہنچ کر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کے غم میں شریک ہوئی۔
कविता ने इन्हें दिलासा देते हुए कहा कि तेलंगाना जागृति इस मुश्किल वक्त में मुकम्मल तौर पर इनके साथ खड़ी है। मुलाकात के दौरान शोधा के अहल खाना अश्कबार थे। इन्होंने अपने प्यारों की यादें ताज़ा करते वाक़यात बयान किए, जिन्हें सुनकर माहौल मज़ीद गमज़दा हो गया। कविता ने हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया कि इस सानहा की संगीनी को देखते हुए शोधा के अहल खाना के लिए ऐलान करदा 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया में इजाफा किया ताकि इन खानदानों की अमली मदद हो सके। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जंगी खतूत पर इंतजामात करते हुए इन अहल खाना की मदद करे जो अपने प्यारों के गुजर जाने पर एका व तन्हा हो चुके हैं। इन्होंने निशानदही की कि चंद मुतासरा खानदान ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सऊदी अरब रवाना नहीं किया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब में शहीद हमारे मुअतमिरीन, हमारे भाई और बहन सीधे जन्नत में जाएंगे, मगर इनके पीछे रह जाने वाले खानदानों का दर्द समझना और इनका सहारा बनना हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है सऊदी में। हमारे हिंदुस्तानी, हमारे हैदराबादी 45 भाई बहन हमारे वहाँ पे एक हादसे में जो एक्सीडेंट हुआ है, उनका जो डेथ हुआ है, मुझे बेहद अफसोस है। दिल को बहुत तकलीफ पहुँची है सुन के। वैसे तो कहते हैं कि वो शहीद हो गए, शहादत पा लिए है, फिर भी हमारे जो इनके रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, इनके हालात देखे और हमारे साथी हैदराबादियों के साथ ऐसा हुआ, ये सोच के ही बहुत तकलीफ हो रही है। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो इनके यहाँ फैमिली मेम्बर्स है उनको जल्द से जल्द रवाना की जाए। छोटे छोटे तकलीफ है, जैसे हज हाउस का परमिशन नहीं मिल रहा है, किसी किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, इन सब के लिए सहूलियत जल्द से जल्द किया जाए और उनको रवाना कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो उनके घर वालों की हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने 5 लाख देने का अनाउंसमेंट किया है और जो ये पूरा इंसिडेंट का सीरियसनेस देख के आप इस 5 लाख को बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि इनके पीछे जो छोड़ के गए हैं फैमिलीज बड़े बड़े हैं और बहुत ही गरीब घर हैं, इनको सपोर्ट आपको चाहिए होगा। और सऊदी में भी ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होते होते देर होने का चांसेस है, तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इसी काम पे किसी को लगाइए, सीरियसली फॉलो अप कीजिए। 60 डेज कम से कम लगता बोल के सऊदी में जो हमारे लोग हैं वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि डीएनए अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और डीएनए आइडेंटिफाई करने के बाद पूरा लीगल क्लियरेंस मिलने के बाद इन सारे लोगों को 1-1 लाख रियाल मिलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रूल्स के हिसाब से वो अलाउड है, लेकिन आप जब तक यहाँ लीगल हेयर को सबको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, वो रकम आने में देरी हो सकती है। तो मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सीरियसली इसको फॉलो अप कीजिए। पहले यहाँ इनके रिलेटिव्स को रवाना कीजिए, इनके घर वालों को थोड़ा तो एटलीस्ट चैन मिलेगा। उसके बाद वहाँ जो हमारे भाई है उनके पूरे रिचुअल्स के साथ प्रॉपरली उनका जो लास्ट राइट्स है वो फिनिश करवाइए। उसके बाद जो उनको कॉम्पनसेशन मिलना है उसको स्पीड अप कीजिए। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ। స్వర్గానికి పోతారు అనుకుంటారు, అట్లానే మదీనాలో ఇటువంటిది ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు వారు స్వర్గానికి వెళ్తారని భావిస్తారు। అయినప్పటికీ వారి పరివారానికి, వారి ఫ్రెండ్స్కి, వారి రిలేటివ్స్కి, అదేవిధంగా మనందరికి కూడా చాలా బాధాకరమైన हैदराबाद के मशहूर व मारूफ सैयद हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग अकेडमी पर मुनक़िदा तक़रीब में सैयद कैसर साबिक़ा गोल्ड मेडलिस्ट की शिरकत व तलबा को दिए मुख्तलिफ मशवरे। शहर हैदराबाद के ओल्ड सिटी में वाक़ सैयद हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग अकेडमी की जानिब से अभी तक 14 नेशनल मेडल इस एकेडमी के तलबा ने हासिल किए हैं। यहाँ पर मुनक़िदा तक़ारीब में निज़ामाबाद के सीनियर क़ायद साबिक़ा गोल्ड मेडलिस्ट सैयद कैसर को बच्चों की रहबरी और इनके मोटिवेशन के लिए मदऊ किया गया, जहाँ पर सैयद कैसर ने इस तक़ारीब में शिरकत करते हुए तलबा को कई मुफीद मशवरे दिए। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस कायदीन के ज़ेर एहतमाम साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े ग्राउंड के पास बालकोंडा हल्का यूथ नायब सदर एस परवीन के ज़ेर एहतमाम साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया।
इस प्रोग्राम में बालकोंडा मंडल यूथ नायब सदर विक्की के श्रीनिवास, अनवर, साई अन्ना, नवीन, राजू, विनेश, वहाब, मजहर, कांग्रेस कायदीन व दीगर मौजूद थे। इमारत की तामीरी कामों के लिए रकूमात की वसूली करने के इल्ज़ामात आयद होने से ही एसीबी ओहदेदारों ने किया धावा। निजामाबाद म्यूनसिपल दफ्तर में एसीबी ने धावा करते हुए टाउन प्लानिंग सेक्शन पर तवज्जो मरकूज करने के साथ साथ फाइल रिकॉर्ड के अलावा डिजिटल डेटा का जायजा लिया और उसूलों के खिलाफ इजाज़त देने के अलावा इमारत की तामीरी कामों के लिए भारी पैमाने पर रकूमात की वसूली करने के इल्ज़ाम आयद होने से ही एसीबी ओहदेदारों की जानिब से धावा करने की इत्तला मौसूल हुई है। रेंजल मंडल के कलियापुर देहात में फ्रेंड यूथ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम झांसी लक्ष्मीबाई जयंती के मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ कलियापुर देहात में फ्रेंड यूथ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम झांसी लक्ष्मीबाई जयंती के मौके पर खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रेंजल एसआई चंद्रा मोहन ने शिरकत की। इस मौके पर यूथ सदर एन नवीन ने कहा कि आज झांसी लक्ष्मीबाई जयंती के मद्देनज़र खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि नौजवान फलाही खिदमात में पहल करते हुए देहात में मुकीम आवाम को मंशियात और गांजे से नजात के लिए शऊर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि आज इनेकाद अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप में तकरीबन 25 अफराद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में शिवा कुमार, एम संतोष, संजू के, साइलू, मोहन, लोकेश के, भरत के अलावा दीगर ने शिरकत की। లక్ష్మీబాయి జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈరోజు కల్యాపూర్ గ్రామంలో ఫ్రెండ్స్ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి జయంతి సందర్భంగా రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సుమారుగా 20 మంది యువకులు దీంట్లో పాల్గొని రక్తదానం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి యువత అందరూ కూడా చెడుదారులకు పట్టకుండా, చెడుదారులకు పోకుండా ఆదర్శంగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు, సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దానిలో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం కూడా ఈరోజు ఈ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈరోజు రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేసి రక్తదానం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు రెడ్ క్రాస్ రక్తదాన సంస్థకు ఈ యొక్క బ్లడ్ అందించడం జరుగుతూ ఉంది. भारत रत्न व साबिका वजीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर अचमपेट में इनकी तस्वीर पर कांग्रेस कायदीन ने पेश की गुले अकीदत। आज भारत रत्न व साबिका वजीर आज़म इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती के मौके पर अचमपेट में इनकी तस्वीर पर कांग्रेस कायदीन ने गुले अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम में डीसीसी सदर एमएलए वंशी कृष्णा व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि गांधी खानदान के बगैर मुल्क को आज़ादी नहीं मिली। आज बीजेपी मरकज़ी हुकूमत गांधी और नेहरू खानदान की तारीख पर बहुतान तराश कर सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जारी है। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी दुनिया की ताकतवर खातून के तौर पर शनाख्त हासिल करने का इजहार किया। श्रीकोंडा में साबिका वजीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनकाद। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ तेलंगाना चौरास्ते में मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन के ज़ेर एहतमाम साबिका वजीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती तकारीब को शानदार पैमाने पर इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर बी रवि ने कहा कि हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती को मंडल कांग्रेस कायदीन के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर इन्होंने ज़मीनी इस्लाहात और गरीबी हटाओ के नारे के अलावा बैंकों के इंतज़ाम में अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर बी रवि, डी साइलू, राजेंद्र गौड़, आसिफ, शोभन, दिगंबर, एम रामलू, राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। देश ప్రధానిగా ఒక ఉక్కు మహిళగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిలిపించబడినటువంటి వ్యక్తి. మరి ఆ రోజు ఆమె తీసుకొచ్చినటువంటి భూ సంస్కరణలు కావచ్చు, మరి గరీబ్ హటావో అనే నినాదం కావచ్చు, బ్యాంకులు విలీనం కావచ్చు, మరి అలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇప్పటికీ ఈ మన దేశ ప్రధానమంత్రుల్లో ఆమెకు ఉన్న సాటి ఎవరు లేరు. మరి ఈరోజు చూసుకుంటే మనం ఎంతో అభివృద్ధిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఆమె చూసినటువంటి ఎవరు కూడా చేస్తలేరు. మరి ఆ రోజు 1972లో 2
మనకు పక్కనే ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు, ఆనాటి తూర్పు బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు, పాకిస్తాన్ కావచ్చు, మరి మన మీదకి వస్తే ఆమె ఒక ఉక్కు మహిళగా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పి మన దేశంను మంచి ఒక అగ్రపదంలో నిలిపింది. हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ सिंगारनी भवन का तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने पार्टी कायदीन के हमरा घेराव किया। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने पार्टी कायदीन के साथ शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ सिंगारनी भवन का मुहासरा किया और सिंगारनी में मुनस्सर मुलाजिमतों को बहाल करने का मुतालबा करते हुए प्ले कार्ड आविज़ा करते हुए सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज किया। मैके में पुलिस बर वक्त पहुँच कर के कविता के अलावा तेलंगाना जागृति कायदीन को तहवील में लेकर मुकामी पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया, जिस कुछ देर तक कशीदगी दिखाई गई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने का AISF कायदीन ने किया इजहार। AISF रियासत तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी P. लक्ष्मण ने कहा कि माशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी इंसानी वसाइल को बढ़ाने में यूनिवर्सिटी का किरदार काबिल तहसीन है, लेकिन ज़िला निज़ामाबाद में तेलंगाना यूनिवर्सिटी में सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज ज़िला निज़ामाबाद के मराकिज़ पर क़याम अमल में लाए गए इजलास से P. लक्ष्मण ने कहा कि गुज़िश्ता 31 अक्टूबर को रियासती हाई कोर्ट यूनिवर्सिटी में 2012 नोटिफिकेशन के नाम पर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तकर्रुरात हुए हैं। इस नोटिफिकेशन को मनसूख करते फौरी तौर पर गैर कानूनी तरीके से तकर्रुर होने वालों को हटाने के ताल्लुक से हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी खातिर खमा तवज्जो न देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AISF रियासत तेलंगाना कायद रघुराम, ज़िला निज़ामाबाद AISF सदर सुबुत कायदीन, नायब सदर कुशाल के अलावा दीगर ने शिरकत की। తుంగలో దోస్తా ఉన్నటువంటి హైకోర్టు నిర్ణయం తుంగలో దోస్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఏంటంటే మేము AISF విద్యార్థి సంఘంగా మేము యూనివర్సిటీ అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీంట్లో జోక్యం చేసుకొని ఏదైతే 2009 అదేవిధంగా 2012లో భర్తీ చేసినటువంటి పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పోస్టులకు సంబంధించి కూడా రోస్టర్ పద్ధతిలో ఏది కూడా భర్తీ చేయకపోవడం వల్లనే దీన్ని రద్దు చేయాలనేది 2012 సంబంధించి పోస్టుకు సంబంధించి ఉంది. యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యల తరుణంలో ఈరోజు హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన తరుణంలో హైకోర్టు తీర్పు స్వాగతించకుండా దాన్ని గౌరవించకుండా కాలయాపన చేస్తే మాత్రం AISF చూస్తూ ఊరుకోం. ఖచ్చితంగా దీనిపైన ప్రభుత్వం కూడా జోక్యం చేసుకొని ఈ యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్నటువంటి అన్ని విషయాలపైన ఒక కమిటీ వేసి విచారణ జరిపించి అక్కడ సమస్యలు పరిష్కరించి ఈ రోస్టర్ పద్ధతిలో ఏదైతే అక్రమంగా ప్రొఫెసర్లుగా ఎన్నికైన వాళ్ళందరూ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని తొలగించి నూతనంగా పాలకమండలి ఏర్పరిచి నూతనంగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్లను ఎన్నికల పద్ధతిలో IMA निज़ामाबाद NNF IAP तंजीमीन अवामी सेहत के लिए किए जाने वाले खिदमात को अर्बन MLA धनपाल ने काबिल सताइश करार दिया। आज नेशनल न्यू नेटालजी फोरम तेलंगाना व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निज़ामाबाद व इंडियन चाइल्ड मेडिकल एसोसिएशन निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम इनकाद अमल में लाए गए नवमौलूद बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ की बेदारी कॉन्फ्रेंस में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने शिरकत करते हुए इससे मुतालिक पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर अर्बन MLA धनपाल ने मुखातिब करते हुए IMA निज़ामाबाद IAP और NNF TS तंजीम अवाम सेहत के शोबे में की जाने वाली खिदमात को काबिल सताइश करार देकर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाने वाले स्कीमात और बच्चों की अमवात की शरह को कम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र नेशनल न्यू नेटालजी फोरम तेलंगाना सदर डॉक्टर के श्री शैलम ने कहा कि नवमौलूद बच्चों की अमवात को कम करने के लिए ज़चगी के वक्त से ही एहतियाती तदाबीर पर अमल आवारी करने का इजहार किया। कमरपल्ली में साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े उपलू देहात में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर S. रवि के ज़ेर एहतमाम साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AMC चेयरमैन P. नरसिया, वाइस चेयरमैन
एस बोजन्ना, श्रीनिवास, एन राजेंद्र प्रसाद, के रविंदर, बी भास्कर, अजमत पाशा, अब्दुल अजहर के अलावा दीगर ने शिरकत की। ख़वातीन की माशी व समाजी तरक्की के लिए कोशिश करने की यूनियन नुमाइंदों से कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने की अपील। ज़िला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीक़े से शुरू किए जाने वाले इंदिरा साड़ियों की तक़सीम को ज़िले में यकीनी बनाने के लिए कोशिश करने की ताकीद की। इंदिरा साड़ियों की तक़सीम पर मबनी प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाने के बाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा के हमरा सेक्रेटरीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत तमाम ज़िलों के कलेक्टरान और ख़वातीन के रिफ़ाक़ी नुमाइंदों से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने दफ्तर से वीसी में शिरकत करने वाले यूनियन के नुमाइंदों को कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ज़िले में ख़वातीन की तरक्की के लिए प्रगति प्रोग्राम के नाम से इंदिरा साड़ियों की तक़सीम के लिए इक़दामात करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बग़ैर किसी तनक़ीद को किसी भी किस्म की कोताही न करते हुए फील्ड सतह पर अहल मुस्तहिक़ ख़वातीन को साड़ियों की तक़सीम अमल में लाने के लिए यूनियन के नुमाइंदों को कोशिश करने का इजहार किया। इंदिरा साड़ियों की तक़सीम का तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने किया आगाज़। आज इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर इससे पहले सीएम रेवंत रेड्डी ने निकलिस रोड पर वाक़ इनके मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर पी प्रभाकर, पी श्रीनिवास रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, दामोदर राजा नरसिम्हा के अलावा वाकटी श्रीहरि, कोंडा सुरेखा, सीतक्का ने शिरकत की। रियासत में करोड़ों ख़वातीन को इंदिरा साड़ियों की तक़सीम अमल में लाई जाएगी। आज से तेलंगाना तली अवताराना के मौके पर 9 दिसंबर तक दही इलाकों में साड़ियों की तक़सीम के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले 1 मार्च से आलमी यौम ख़वातीन 8 मार्च तक शहरी इलाकों में हवाले किया जाएगा। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर साड़ियों की तक़सीम अमल में लाने का इजहार किया। ज़िला निज़ामाबाद के सेंट्रल लाइब्रेरी में मुकामी ख़वातीन व तालिबात के लिए मेहंदी मुकाबला जात का किया गया इनेकाद। आज 58वां कौमी लाइब्रेरी तकारीब 19 नवंबर को आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ज़िला निज़ामाबाद के मराकिज़ पर वाक़ लाइब्रेरी में मुकामी ख़वातीन तालिबात को मेहंदी मुकाबला जात का एहतमाम किया गया। इन मुकाबला जात के जज के तौर पर अपर्णा और एम मंजुला रेड्डी के अलावा जी पद्मजा रेड्डी को जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर ज़िला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने इन मुकाबला जात का जायज़ा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया और इस मुकाबला जात में शिरकत करने वालों को मुबारकबाद पेश की। ज़िला कांग्रेस भवन में साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जयंती तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती के मौके पर ज़िला कांग्रेस शहरी कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम नोडा चेयरमैन केशव वीनू ने कांग्रेस भवन में साबिक़ा वज़ीर आज़म की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। इसके अलावा शहर के फुलांग के पास वाक़ इंदिरा गांधी मुजस्समे पर कांग्रेस कायदीन के हमरा गुलेह अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर केशव वीनू ने कहा कि साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी मुल्क में कई तब्दीली अमल में लाकर तरक्की की तरफ गामज़न करने के लिए जाने वाले इनकलाबी फ़ैसलों की बदौलत ही आज मुल्क दुनिया में अव्वलीन मुकाम हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पीसीसी जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल, ज़िला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी, रियासती NSUI जनरल सेक्रेटरी विनू राज के अलावा दीगर ने शिरकत की। अख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद म्युनिसिपल दफ्तर में ACB का धावा, इमारत की तामीरी कामों के लिए रकूमात की वसूली करने के इल्ज़ामात से की तनकीद। ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तक़ीम करने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। हैदराबाद में इंदिरा साड़ियों की तक़सीम पर मबनी प्रोग्राम में सीएम रेवंत रेड्डी की शिरकत व रियासत में करोड़ों ख़वातीन को साड़ियों की तक़सीम करने का किया इज़हार।
सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने सऊदी अरब में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में 45 हैदराबादी मोअतमरीन के शहीद होने पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। IMA IAP NNF तंजीमी अवामी सेहत के लिए किए जाने वाले खिदमत काबिल सताइश। निजामाबाद में नवमौलूद बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी कॉन्फ्रेंस से अर्बन MLA धनपाल का खिताब। मुल्क की आज़ादी में गांधी खानदान का अहम किरदार। अचमपेट में इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने पेश की गुले अकीदत। निजामाबाद सेंट्रल लाइब्रेरी में नेशनल लाइब्रेरी तकारीब के मौके पर मेहंदी मुकाबला जात का किया गया इनेकाद। जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने शिरकत करते मुकाबला जात का लिया जायजा। हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीके से शुरू किए जाने वाले इंदिरा साड़ियों की तकसीम को शिफाफ तरीके से इनेकाद करें। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।